एलिस इन वंडरलैंड, ये कहानियाँ किसको पसंद नहीं है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले यहाँ इंग्लिश है और बाद में हिंदी है, तो वीडियो पूरा देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। Alice meets the Cheshire Cat. The door led right into a large kitchen which was full of smoke from one end to the other. The Duchess was sitting on a three-legged stool in the middle, nursing a baby. The cook was leaning over the fire, stirring a large cauldron which seemed to be full of soup. There's certainly too much pepper in that soup, Alice said to herself, as well as she could for sneezing. Even the Duchess sneezed occasionally, and the baby was sneezing and howling alternately without a moment's pause. The only things in the kitchen that did not sneeze were the cook and a large cat which was sitting on the hearth and grinning from ear to ear. Why does your cat grin like that? It's a Cheshire cat, and that's why. I didn't know that Cheshire cats always grinned. In fact, I didn't know that cats could grin. They all can, and most of them do. Later, when Alice was outside again, she was quite startled by seeing the Cheshire cat sitting on a bough of a tree a few yards off. Cheshire Puss, would you tell me, please, which way I ought to go from here? That depends a good deal on where you want to get to, said the cat. Alice did not much care where she went, so she tried a different question. What sort of people live about here? in that direction The cat said, waving its right paw round, lives a hatter, and in that direction waving the other paw. lives a March hare. Visit either you like. They are both mad. Alice said that she did not want to go among mad people. Oh, you can't help that. We are all mad here. I'm mad, you're mad. How do you know I'm mad? You must be, or you wouldn't have come here. Alice didn't think that proved it at all. However, she went on. And how do you know that you are mad? To begin with, a dog's not mad. You grant that? I suppose so. Well, then, you see a dog growls when it's angry and wags its tail when it's pleased. Now, I growl when I'm pleased and wag my tail when I'm angry. Therefore, I'm mad. I call it purring, not growling. Call it what you like. Saying this, the cat vanished but soon appeared again. It asked Alice what became of the Duchess's baby. She responded saying that it had turned into a pig. So saying, Alice started walking in the direction in which the March hare was said to live. The cat vanished and appeared again. I wish you wouldn't keep appearing and vanishing so suddenly. You make one quite giddy. All right, said the cat. And this time it vanished quite slowly, beginning with the end of the tail and ending with the grin which remained some time after the rest of it had gone. She had not gone much farther before she came in sight of the house of the March hare. She thought it must be the right house because the chimneys were shaped like ears and the roof was thatched with fur. Alice walked to the house wondering what it would have been like to visit the hatter instead. तो चलिए अब इसी स्टोरी को हिंदी में भी सुनते हैं। एलिस मिली चेशर बिल्ली से। यहाँ पे देखिए ये स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड इसकी है। यहाँ पे एलिस फिर से एक न्यू कैरेक्टर के साथ मिलती है। जैसे डोर ओपन हो जाता है एक बहुत बड़े किचन में से धुआं निकलता हुआ उसे दिख रहा है और वो अच्छे तरह से उस धुएं में से देखने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे एक डचेस मतलब रानी बैठी होती है
3 लेग स्टूल के ऊपर, और उसके हाथ में एक बेबी है जिसको वो ध्यान से पकड़ के रखी उसका केयर कर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खाना बनाने वाली कुक है जो आग पे ऊपर एक बड़ा सा बर्तन और उसमें सूप बना रही है, और उस सूप में बहुत सारा पेपर डाला है, इतना डाला है कि उसके कारण उन्हें छींकें आ रही है। एलिस को तब भी जोर से छींक आ गई और वो मन ही मन बोल रही है कि ये क्या, और तभी डचेस को भी छींक आ रही है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा बेबी जो है वो भी जोर जोर से चीखें दे रहा था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ये तीनों चीखें दे रहे थे, लेकिन जो कुक सबसे पास, सूप के सबसे पास खड़ी थी, वही खुद पेपर डाल रही थी और उसको थोड़ी सी भी खांसी नहीं आ रही थी। और एक बिल्ली थी जो पूरे के पूरे दांत बाहर निकाल के ये चिढ़ा रही थी, जैसे कि पूरे के पूरे दांत बाहर थे। ये बिल्ली ऐसे क्यों कर रही है, डचेस को इसने पूछा, एलिस ने। तो उसने आंसर दिया कि वो चेशियर कैट है, वो ऐसे ही करती रहती है दिन भर, उसके दांत बाहर ही रहते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कि वो गुस्सा कर रही है, लेकिन वैसे नहीं है, वो प्रजाति ही वैसे है। तो एलिस बड़ी हैरान से बोलती है, मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। तो ये बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसे ही होता है, मोस्ट ऑफ द कैट्स ऐसे होती है। वो वहाँ से बाहर निकले और निकलने के बाद एक पेड़ के ऊपर उसने देखा कि वही केशियर बिल्ली जो है, वो चेस्टियर बिल्ली, वहाँ पे एक बड़े से ब्रांच के ऊपर बैठी हुई है और वैसे ही पूरे के पूरे बत्ती सी उसने बाहर निकाल के वहाँ पे खड़ी है, बैठी है। बिल्ली, तुम मुझे बताओ कि मैं कौन से रास्ते से यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, तो कौन से रास्ते से जाऊँ। तो बिल्ली ने बोला, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कहाँ से कैसे निकलना चाहती हो। ये क्या, बिल्ली ने जो आंसर दिया है ये बड़ा हैरानी वाला है। ऐसे कोई क्वेश्चन का आंसर देता है क्या? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देने की जगह पे इसने और एक क्वेश्चन मेरे लिए फिर से पैदा कर दिया। तो वो बोली कि यहाँ पे कैसे किस टाइप के लोग रहते हैं। तो वो बिल्ली ने तब आंसर दिया कि देखो, उस डायरेक्शन में तुम जाओगी तो वो राइट पाव वाला जो है वो वाला, हाँ, वहाँ पे हैटर्स रहते हैं और उस डायरेक्शन में मार्च हेयर रहते हैं। उसने ऐसे उसे डायरेक्शन मतलब हाथ दिखा दिखा के उसे बोला है, बताया है। और बाद में फिर वो बोलती है कि यहाँ पे सब लोग मैड ही है। तब एलिस उसे कहती है, मैं तो मैड लोगों के बीच में बिल्कुल रहना नहीं चाहती। तब बिल्ली उसे बोलती है कि फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हम सभी के सभी पागल है। तुम पागल हो, मैं पागल हूँ। तब भी वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं पागल हूँ। तो वो बोलती है, अरे यहाँ पे जो भी आता है वो पागल ही तो होता है, तभी तो आया होता है। एलिस को पता, मतलब वो ऐसे देखना चाहती, वो प्रूफ करना चाहती कि ऐसे कैसे। तो उसने उसे पूछा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं पागल हूँ। बिल्ली को वो पूछती है बड़ी हैरानी से। बिल्ली बोलती है, तुम्हें पता है जब डॉग है ना, डॉग पागल हो जाता है तो वो ज़मीन को खोदना लग शुरू कर देता है, चिड़लाना, हाँ। और जब वो एंग्री हो जाता है तब वो ऐसे चीज़ें करता है, लेकिन जब वो हैप्पी होता है तब वो अपनी दुम हिला हिला के अपना हैप्पीनेस सभी को दिखाता है। ये बराबर है? हाँ, बराबर है। लेकिन बिल्ली बोलती है, मेरे बारे में ऐसे नहीं है। मेरे बारे में ऐसे है कि जब मैं तो पागल ही हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा मेरी पूरी बत्ती से दिखा के मेरा गुस्सा दिखाती हूँ, लेकिन मैं जब बहुत हैप्पी होती हूँ तब ऐसे करती हूँ। और ये बोल के वो वैनिश हो गई, वो अदृश्य हो गई। फिर से वो आ गई। आने के बाद वो जो है, अच्छा ठीक है जान दो, वो डचेस का बेबी कैसे है, ऐसे वो क्या बनेगा, ऐसे वो उसने पूछा। तब उसने रिप्लाई दिया कि वो शायद से पिग में कन्वर्ट हो जाएगा करके। और एलिस ने फिर उसके जो हाथ दिखाया था मार्च हेयर वाला, उधर रहता है और यहाँ पे इधर वो हैटर रहता है, ऐसा सोच के वो निकल पड़ी। फिर से बिल्ली बीच में ही वो आ गई और फिर से वैनिश हो गई, फिर से आ गई, फिर से वैनिश हो गई। वो बोलने लगी, एलिस देखो बिल्ली, तुम ऐसे मत करो, वो अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो तुम मेरे सामने पूरा का पूरा रहो, नहीं तो कायम की वैनिश हो जाओ। तो वो बोलती कि अच्छा एक काम करती हूँ, मैं धीरे धीरे वैनिश हो जाऊँगी और धीरे धीरे आऊँगी। इसका मतलब है बहुत टाइम लेने वाली हूँ, तो तुमको डर नहीं लगेगा। तो वो दुम की तरफ से वो धीरे धीरे वैनिश होती है और सबसे बाद उसके दांत जो है वो बाद में होते हैं।
तो ये चलते चलते अब आ गई है जो मार्च हेयर है उसके घर के पास आ गई है। उसे लग रहा है कि ये करेक्ट वाला हाउस है, क्योंकि जैसे कॉमन सब लोगों का हाउस होना चाहिए था वैसे ही ये घर लग रहा था, लेकिन इसका शेप और साइज जो है वो भी हमारे रूफ की जैसे ही थी। फर था ऊपर, जो चिमनी थी वो, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चल चल के उसको घर के अंदर जाके वो एटलीस्ट विज़िट करना चाहती थी। तो ये पार्ट यहीं तक था। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सुपर थैंक्स का बटन दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करना और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।